Hello, everyone, and welcome everybody to the session where we are going to discuss this lesson, the sweet lesson on childhood. And the lesson name is My Childhood. So, here let's find out who is this My, who is talking about his or her childhood. So, let's get started with the lesson with a mini introduction of the lesson. So, in this session, my dear students, I'll be teaching you the complete lesson in two parts, part 1 and then part 2. Okay, you can watch part 2 just after this video, and you can even share with other students because we are going to discuss this lesson in detail. Okay, plus I will be also asking you some MCQs in between the sessions so that I can check that you are up to date with the lesson. So here, my students, the lesson name is My Childhood, and if I talk about the introduction, here we are talking about Abdul Kalam. Yes, we are talking about Dr. APJ Abdul Kalam. Abdul Kalam's biography is titled With Wings of Fire. So you must know that there is a complete book, a complete biography written on Abdul Kalam's life named With Wings of Fire, and it's written by Arun Tiwari. What we are doing right now, we are just taking a small chapter of his life, that is his childhood. So there were many incidents which had happened in his teenage, later in his age when he was a scientist, and many things had happened with him. Yes, but we are not going to talk about all that. We are going to today start with his childhood experience. What had happened in his childhood, some basic details about his parents, mother, and other details. Okay, so my childhood talks about the childhood of APJ Abdul Kalam. He was the president of India and a great scientist too, no doubt. APJ talks about his upbringing, his parents, and siblings. He tells us about his friends and all those things that influenced his childhood. So, my dear students, hello everyone, my name is Minakshi Thal, and today I'm going to conduct this session for all my dear students of class ninth to understand this lesson better, which is My Childhood, where we are going to talk about APJ Abdul Kalam's childhood. Okay, let's get started and let's continue with the session. So the story begins like this. So he says, I was born into a middle class Tamil family. This is the first detail that we get about APJ Abdul Kalam, that he was born in a Tamil family in the island town of Rameshwaram. Okay, in the erstwhile Madras state. Erstwhile means former Madras state. Okay, so he had born in a Tamil family in Rameshwaram. This is the basic detail about him. Now let's talk about his father. My father, Jainulabdin. His father's name was Jainulabdin and had neither much formal education nor much wealth. So if it talks about his father, अगर वो अपने means अगर वो अपने father के बारे में बात करें, he did not have formal education. कोई उनके पास बहुत ज़्यादा high degree नहीं थी, and he did not have even so much money. Okay, despite these disadvantages, इन सारे negative points के बावजूद, despite these points, he possessed great innate wisdom. इन सब चीज़ों के बावजूद भी उनके अंदर एक बहुत ही great wisdom थी, एक true generosity थी, spirit थी. So he had, that pure soul. Despite the fact that he was not rich or educated, he had that pure soul and he used to help people, whosoever was needy. Okay, great. So we got two information. He belongs from Tamil family. His house was in Rameshwaram. His father name was Jainulabdin, who was a really kind person and helpful person. He was not educated or he was not wealthy. Then also he was always ready to help people around him who were needy. Now we talk about his mother. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyama. Now we are right now talking about APJ Abdul Kalam's father. So he's saying that my father had one ideal helpmate. She used to always help my father, or she was always available for my father's support.
and his mother's name was Ashiyama. His father's name was Januluddin, and his mother's name was Ashiyama. I do not recall the exact number of people she fed every day. So APJ Abdul Kalam is saying he does not even remember कि वो क्या एग्जैक्ट नंबर के लोगों को खाना डेली खिलाती थी. मीन्स वो इतना ज़्यादा शी हैड दैट गिविंग नेचर दैट शी यूज टू feed so many people every day that APJ Abdul Kalam does not even remember the number. But I'm quite certain that far more outsiders ate with us than all members of our own family put together. So, but APJ Abdul Kalam ये easily कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग बाहर के खाना खाते थे. अगर हम कंपेयर करें हमारे फैमिली के पूरे मेंबर्स को काउंट करें तो हम लोगों से वो ज़्यादा ही होते थे आउटसाइडर्स जिन्हें वो खाना खिलाती थी हमारे साथ. I was one of many children. A short boy with rather undistinguished looks. So APJ Abdul Kalam was little different than his family. He was a short-sized boy with rather undistinguished looks. Means he did not have such beautiful or beautiful looks. He had that common look, born to tall and handsome parents. So he got the birth from those tall and handsome parents. His mother and father both had that adorable personality. They were beautiful, they were tall. And opposite to that, APJ Abdul Kalam was a short boy whose appearance was also not so special. It was also common. So here's how APJ Abdul Kalam is comparing himself with his parents. Okay. नाउ एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी मदर के बारे में बताया कि वो हर दिन बहुत सारे लोगों को खिलाती थी खाना. इवन उनकी फैमिली के मेंबर से ज़्यादा वो बाहर के लोगों को खाना खिला देती थी. मीन्स अगर उनकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं देन शी यूज टू फीड मोर आउटसाइडर्स इन अ डे, मोर देन द फैमिली मेंबर्स इवन. ओके. देन ही ऑल्सो एक्सप्लेन कि उनकी उनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी थी और इतने कुछ स्पेशल लुक्स नहीं थे. बट अगर वो अपने पेरेंट्स की बात करें सो दे बोथ वर हैंडसम एंड टॉल. दे बोथ हैड गॉर्जियस पर्सनैलिटी. मूविंग फॉरवर्ड विद द स्टोरी, he says we lived in our ancestral house. वो अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, ancestral house में रहते थे, which was built in the middle of the 19th century. जो कब built हुआ था? 19th century की middle में हुआ था. It was a fairly large पक्का house. Fairly कह सकते हैं हम, ये एक बहुत बड़ा पक्का house था, made of limestone and bricks. On the Mosque Street in रामेश्वरम. कहाँ पे था घर उनका? Mosque Street, रामेश्वरम में. Yes, Pakka house means a house made of bricks, cements, and limestone. So he used to live in a Pakka house which was built in the middle of the 19th century, which was on the Mosque Street in Rameshwaram. Yes. My austere father. Now here he talks about his father's quality. वो अपने फादर के लिए एक एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑस्टर. ऑस्टर मीन्स सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर. सो मीन्स वो सिंपल लिविंग और स्ट्रिक्ट रहते थे, अपने रूल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे कि ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा. My austere father used to avoid all inessential comforts. Inessential comforts means those things which are not so important, those comforts which are not so important. For example, purchasing a car is an inessential comfort for his father. कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कंफर्ट और लग्जरी के लिए. ही यूज टू अवॉइड दीज थिंग्स. उनको ये सब पसंद नहीं था एक्स्ट्रा कंफर्ट या लग्जरी के लिए वो कुछ खरीदे. ओके. सो हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड. हाँ, लग्जरीज पे स्पेंड नहीं करते थे बट येस, all their necessities, all their basic needs were fulfilled by their father. For example, food, medicine, clothes, everything was provided to them. In fact, I would say mine was a secure childhood. In fact, APJ Abdul Kalam can say that his childhood was secure. बहुत एक सिक्योर हैंड्स में था. उनको जो चाहिए था वो टाइम पे मिलता था. बट हाँ,
बेफालतू की लग्जरीज में उनके फादर बिलीव नहीं करते थे पैसे वेस्ट करना, अदरवाइज ही वॉज अ वेरी सपोर्टिव फादर। बोथ मटेरियली मीन्स जो एपीजे अब्दुल कलाम को मटेरियल चाहिए था उनकी बेटर ग्रोथ के लिए या उनकी बेटर लाइफ के लिए, वो भी उन्हें मिला, और इमोशनली भी उन्हें बहुत सपोर्ट मिला अपने पेरेंट्स से, स्पेशली फ्रॉम हिज ऑस्टियर फादर। सो एक बहुत फिक्स्ड मेंटालिटी लेके चलते थे एपीजे अब्दुल कलाम के फादर, एंड ही हैड he had really a supportive nature for his son. Okay, let's continue with the story. You must know what is. Hmm. The Second World War broke out in 1939. 1939 में Second World War start हुआ when he was only 8 years old. हमें ये details याद रखनी है because in exam we can directly get a question. What was his age when Second World War just broke out? Or what was the year? So such questions can be arised easily. So please make sure that you remember these details. Okay. Next is, for reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind. Tamarind seeds are imli ke beach. Yes. So he did not understand why there was a sudden demand. Suddenly क्यों सबको इमली और इमली के बीज की रिक्वायरमेंट आने लगी थी. Erupted in the market. आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स. तो एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सीड्स कलेक्ट करने और उन्हें बेचना खुद से स्टार्ट कर दिया. प्रोविजन शॉप्स पे वो कलेक्ट करते थे बीजों को प्लांट से, मीन्स ट्रीज से, और उनको शॉप्स पे दे के आते थे. ऑन मॉस्क्यू, जो भी मॉस्क्यू स्ट्रीट्स पे शॉप थी उन्हें दे के आते थे. एक दिन की कलेक्शन उन्हें हेल्प कर देती थी सही अमाउंट गेन करने में. सम ऑफ 1 आना, जैसे अभी हम रुपीज बोलते हैं ना, दैट टाइम देर वॉज करेंसी ऑफ आना. ओके, सो ही वॉज एबल टू समवेयर कलेक्ट 1 आना एवरी डे. हर दिन उनकी इतनी कलेक्शन हो जाती थी कि दैट ही यूज टू अर्न 1 आना. ठीक है, आना मीन्स इट्स एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे. Okay. Next comes some more information. Now this is how APJ Abdul Kalam started getting, work, started getting active. So first thing that he did was just selling the seeds. Okay. Hmm. So my brother-in-law, his brother-in-law जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर. जो उनके ब्रदर इन लॉ थे वो उन्हें स्टोरीज बताया करते थे वॉर के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन हेडलाइंस इन दीनामनी. सो एपीजे अब्दुल कलाम वॉज एक्टिव अबाउट इकोनॉमी और आसपास के बारे में इंफॉर्मेशन रखना. ये उनकी लाइक फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ओनली ही वॉज एक्टिव अबाउट इट. सो लाइक वी कैन अंडरस्टैंड. जलालुद्दीन जो उनके ब्रदर इन लॉ थे वो उन्हें स्टोरीज बताते थे, और वो क्या करते थे न्यूज़पेपर्स में उन स्टोरीज को, उन हेडलाइंस को ढूंढते थे, ट्रेस करते थे. न्यूज़पेपर, कौन से न्यूज़पेपर में? दीनामनी में. दीनामनी एक डेली तमिल न्यूज़पेपर था जो उस टाइम पे रामेश्वरम में आता था डेली, तो वो उसमें देखा करते थे. आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. जो उनका एरिया था वो बिल्कुल अलग पड़ता था, कॉर्नर में आता था, तो अभी तक कोई अफेक्ट नहीं हुआ था उनके एरिया में बिकॉज ऑफ वॉर. बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन अलाइड फोर्सेस. सून क्या हुआ, इंडिया को फोर्स किया गया, इंडिया वॉज फोर्सली ज्वाइन द आर्मीज ऑफ यूके, यूनाइटेड स्टेट्स. और अब इनकी स्टेट पे भी इमरजेंसी आ गई थी. इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, मीन्स नाउ रामेश्वरम वॉज ऑल्सो नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द वॉर, इट वॉज ऑल्सो इन द वॉर. सो इस सिचुएशन में फर्स्ट कैजुअली केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन. सो धीरे धीरे ये बात रामेश्वरम तक पहुंचती जा रही थी, वॉर्स के इफेक्ट आते जा रहे थे. सबसे पहला कैजुअल एक्शन जो हुआ इसके लिए
वो ये था कि रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन रुकनी बंद हो गई। मीन्स ट्रेन यूज टू स्टॉप एट ईच स्टेशन बट इट स्टॉप्ड, यू नो, वो अब रामेश्वरम स्टेशन पे रुकती ही नहीं थी। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train. So अब जो भी न्यूज़पेपर रामेश्वरम पे पहुंचाना है वो डायरेक्टली बंडल्स में कलेक्ट होके पहले फेंका जाएगा नीचे चलती ट्रेन से। ट्रेन तो रुकेगी ही नहीं रामेश्वरम पे। सो जो रामेश्वरम की रोड पे वहां पे फेंका जाएगा बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। सो ये होना स्टार्ट हो गया था। This is how it started affecting Rameshwaram. The war and everything started affecting Rameshwaram. That forced my cousin Samsuddin. Who is Samsuddin? Samsuddin is APJ Abdul Kalam's cousin. सो जो उनके कज़न थे उन्हें अब किसी की ज़रूरत थी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि अगर वो ऊपर से कलेक्ट करके फेंकते जाएंगे, दे रिक्वायर ही वांटेड समवन टू कलेक्ट दोज बंच ऑफ न्यूज़पेपर, टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड, टू कैच द बंडल्स, एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। तो नेचुरली एपीजे अब्दुल कलाम ने वो स्लॉट फिल कर दिया जो बंडल्स कलेक्ट करने वाला था और न्यूज़पेपर को सब तक पहुंचाने का था। शमसुद्दीन ने बेसिकली शमसुद्दीन गेव दिस फर्स्ट जॉब to APJ Abdul Kalam. Samsuddin helped me earn my first wages. This was APJ Abdul Kalam's first wages on his own. Half a century later means अगर हम बात करें 50 years बाद भी उसके, अभी भी APJ अब्दुल कलाम को याद है कि वो कितना प्राउड मोमेंट था उस मनी को अर्न करना फर्स्ट टाइम। यस, every child is born with some inherited characteristics. Now APJ Abdul Kalam is continuing with that. He said that मैं अभी भी 50 साल बाद भी अगर मैं उस बात को याद करता हूँ, that is a proud for me. वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि मैंने अपनी जो फर्स्ट इनकम अर्न करी थी वो अभी भी मुझे प्राउड फील करवाती है। Every child is born with some inherited characteristics. हाँ, ये सच है। Like we all are born with different characteristics. हम में अलग अलग qualities हैं, हम अलग अलग you know, we behave differently, we talk differently, we have different ways to deal with one situation. कई सारे students होते हैं जो एग्जाम जैसे ही पास आते जाते हैं they start getting ill, वो बीमार होने लग जाते हैं। But there are many students who know कम टाइम आ रहा है then they take care of their health a lot. Yes, so we all are different and we all have different ways to look into the life. Every child is born with some inherited characteristics into a specific social, economic and emotional environment. अगर हम इस social, economic या emotional environment की बात करें, सबके अलग अलग characteristics हैं and trained in certain ways by figures of authority. और हम सब अलग अलग मेथड में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग फिगर्स में ट्रेंड हुए हैं। I inherited honesty and self discipline from my father. मैंने, और अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, उनमें ऑनेस्टी और ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो अपने लिए डिसिप्लिन बनाने की बातें हैं, ये सब कहाँ से आई हैं? उनके फादर से आई हैं, फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर। और उनकी मदर से उन्होंने क्या सीखा है? उन्होंने कौन सी क्वालिटीज इनहेरिट करी हैं? आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। मैंने इनहेरिट करी है हैबिट बिलीव करने की, विश्वास रखने की अच्छाई में, अच्छा काम करने की और उस पर विश्वास रखने की। एंड डीप काइंडनेस, और वो डीप काइंडनेस लाने की सबके लिए। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और सेम जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने फादर और मदर से ये सारी अच्छी चीज़ें लाइक ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, गुडनेस सीखी है, इन सेम वे हिज 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑल्सो लर्न सेम। उनके जो 3 भाई और 1 बहन है, उन्होंने भी यही सब सीखा अपने पेरेंट्स से। उन्हें भी यही सब सीखने का चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली अपने पेरेंट्स से। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। आगे एपीजे अब्दुल कलाम कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं उनके 3 वेरी क्लोज फ्रेंड्स थे उनके स्कूल में, जिनमें से एक का नाम था रामनाथा शास्त्री, सेकंड अरविंदन और थर्ड शिव प्रकाशन। ये तीनों एपीजे अब्दुल कलाम के बेस्ट फ्रेंड्स थे और एक दूसरे के भी।
All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. जो एपीजे अब्दुल कलाम के तीनों फ्रेंड्स थे वो एक स्ट्रिक्ट हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, मीन्स जहाँ पे रिचुअल्स और ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, जहाँ पे ये सारे रूल्स रेगुलेशंस खाने पीने का, यू नो, इफ़ यू रिमेंबर पहले छुआछूत की बातें बहुत ज़्यादा होती थी कि हाँ अनटचेबल है, इसने अगर टच कर दिया अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। ये सब चीज़ें ज़्यादातर हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़ में जो होती थी वो सब बहुत स्ट्रिक्ट एक तरह से उनकी फैमिलीज थी। बट इस फैक्ट के बावजूद भी दे वर ऑल गुड फ्रेंड्स. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences. वो कहते हैं कि एज अ चाइल्ड मीन्स बच्चे के तौर पे उनको कभी रियलाइज नहीं हुआ कि उनमें कोई डिफरेंस है, उन चारों में कोई भी डिफरेंस है किसी भी रिलीजियस की वजह से, रिलीजन की वजह से या अपब्रिंगिंग की वजह से. फॉर देम दे फोर वर सिमिलर. In fact, Ramananda Shastri was the son of पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. इनफैक्ट जो रामनदा शास्त्री थे, जो उनके फ्रेंड थे, वो किसके बेटे थे? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के, जो एक हाई प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल में. लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. लेटर ऑन इवन जो रामेश्वरम थे, सॉरी रामनदा थे, उन्होंने अपने फादर से उनके जो प्रीस्ट की जॉब थी, जो सबसे बड़े प्रीस्ट की जॉब थी एक तरह से रामेश्वरम में, वो भी उन्होंने अचीव करी थी लेटर ऑन. फिर भी वो अच्छे फ्रेंड्स थे. अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. अरविंदम ने क्या शुरू कर दिया था? उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था. वो अरेंज करवाते थे ट्रांसपोर्ट्स को पिलग्रिम में जाने के लिए, मीन्स जो पिलग्रिमेज एरियाज होते हैं जहाँ पे हम पूजा के लिए जाते हैं, तीर्थ जगहें जो होती हैं, तीर्थ स्थल जो होते हैं, वहाँ पे वो जाने उन्होंने वहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया. एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर. और जो शिव प्रकाशन थे वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन चुके थे फॉर द साउथर्न रेलवेज के केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन चुके थे वो. सो बेसिकली एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, एवरीथिंग वॉज फाइन, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था, सब कुछ अच्छा जा रहा था. और इवन फ्यूचर में उनके बहुत अच्छे अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हुए. जो उनके एक फ्रेंड थे जो पंडित के बेटे थे वो पंडित बन गए. जो उनके दूसरे फ्रेंड थे उन्होंने अपना, एक फ्रेंड ने उनके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दूसरे फ्रेंड ने केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट ले लिया साउदर्न रेलवेज में. एवरीथिंग वॉज गुड. यस. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी. अब ये सीता रामा कल्याणम सेरेमनी क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट. सीता रामा कल्याणम सेरेमनी. रामा कल्याणम सेरेमनी इज अ कल्याणोत्सव. Kalyanotsava is also known as Kalyanotsava. It means marriage festival. वो जो मैरिज फेस्टिवल होता है सबका एक साथ, that is it. In South India, marriage is known as कल्याणम. साउथ इंडिया में मैरिज को कल्याणम बोला जाता है. सो इसीलिए लॉर्ड राम और सीता की मैरिज को क्या बोला जाता है? सीता रामा कल्याणम सेरेमनी. सीता और राम की मैरिज सेरेमनी. It is the ceremony of the depiction of the marriage between Sita and Rama. ये जो सेरेमनी है वो डिपिक्ट करती है इनके रिलेशन को, इनके मैरिज को जो सीता और राम की हुई थी. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स. इन सेरेमनीज पे जो रामेश्वरम की फैमिलीज थी वो क्या करती थी? वो बोट्स अरेंज करती थी विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म. एक स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड, जिसपे वो भगवान के आइडल्स लेके जा सके, मूर्तियां लेके जा सके फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट. टेम्पल से मैरिज साइट की तरफ. सिचुएटेड इन द मिडल पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्था विच वॉज नियर आर हाउस. सो रामेश्वरम बताते हैं इस इवेंट के, इस सेरेमनी के बारे में, सीता रामा कल्याणम सेरेमनी. Events from the Ramayana and from the life of Prophet
were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. So यहाँ पे अब अब्दुल कलाम बात कर रहे हैं कि उनकी मदर ने, उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें बहुत सारी बेड टाइम स्टोरीज बताई थी। किससे? रामायण से और प्रॉफिट से। ये दो ये जो स्टोरीज थी, इनमें से उन्होंने बहुत सारी उन्हें शॉर्ट बेड टाइम स्टोरीज सुनाई थी। वन डे व्हेन आई वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, एक मीन्स Abdul Kalam was remembering the day from his fifth standard. He was in the fifth standard at the Rameshwaram Elementary School. A new teacher came to our class. एक new teacher आते हैं उनकी class में. I used to wear a cap which marked me as a Muslim. So अब्दुल कलाम बताते हैं कि मैं एक कैप वेयर करता था जो मुझे, जो एक तरह से एक मार्क था सबको बताने के लिए दैट आई एम मुस्लिम. एंड आई ऑलवेज सैट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री. और वो हमेशा कहाँ बैठते थे? फ्रंट रो में बैठते थे. फ्रंट रो में बैठते थे कहाँ पे? बिल्कुल रामनाथा शास्त्री के नेक्स्ट में. सो इफ यू कैन सी, दिस इज रामनाथा शास्त्री एंड दिस इज एपीजे अब्दुल कलाम. और ये दोनों हमेशा साथ बैठते थे, ऐसे फ्रंट रो में हमेशा दोनों साथ में मिलते थे. यस. सो हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, जो जिन्होंने रामनाथा शास्त्री जिन्होंने अपना थ्रेड पहना हुआ था पूजा का, और एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने कैप पहनी थी. इमेजिन कितनी इनकी फ्रेंडशिप कितनी फ्री थी, कितनी रिलैक्सिंग थी, दैट दे वर सिटिंग टुगेदर एंड दे वर एंजॉइंग द क्लास टुगेदर एंड दे यूज्ड टू सिट एवरी डे लाइक दिस. बट ये फिफ्थ स्टैंडर्ड में इस दिन उनकी क्लास में एक न्यू टीचर आते हैं और जिनको एक्चुअली समझ नहीं आता कि क्यों एक हिंदू प्रीस्ट का बेटा मुस्लिम बॉय के साथ बैठे हैं. सो जैसे उन्होंने सोशल सोसाइटी में देखा और रैंकिंग करी है, तो जो न्यू टीचर थे उन्होंने, आई वाज आस्क्ड टू गो, उन्होंने क्या ऑर्डर दे दिया अब्दुल कलाम को कि तुम उठो और पीछे लास्ट बेंच पे जाके बैठो. अब्दुल कलाम को बहुत बुरा लगा. ही फेल्ट वेरी सैड. सो डिड रामदादा शास्त्री. और सेम रामदादा शास्त्री वाज आल्सो नॉट हैप्पी विद दिस. उन्हें भी बुरा लगा. ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट. उन्हें बहुत बुरा लगा और वो बहुत ज़्यादा ही सैड लग रहे थे. हु? रामानंदा शास्त्री. एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, क्योंकि मेरे को लास्ट रो वाली सीट पे जाना पड़ा था, इसलिए रामनंदा शास्त्री भी हैप्पी नहीं थे. द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी. वो जो सिनेरियो था जहाँ पे द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, जहाँ पे रामनाथ शास्त्री रो रहे थे जस्ट बिकॉज एपीजे अब्दुल कलाम लास्ट रो में शिफ्ट हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव मोमेंट था और वो भुला नहीं सकते एपीजे अब्दुल कलाम कि वो इतने कितनी स्ट्रेंज फीलिंग थी. ऑन वन हैंड हिज टीचर वॉज कंसिडरिंग हिम डिफरेंट और एंड आउट ऑफ क्राउड. ऑन द अदर हैंड हिज फ्रेंड वॉज क्राइंग फॉर हिम. आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट टू होम and told our respective parents about the incident. So स्कूल के बाद उन दोनों ने अपने घर में जाकर अपने पेरेंट्स को ये सब बताया जो उनकी क्लास में हुआ आज. रामनाथ शास्त्री ने भी और अब्दुल कलाम ने भी. रामनाथ शास्त्री, उनके जो फादर थे लक्ष्मण शास्त्री, वो स्कूल जाते हैं और टीचर से बात करते हैं. इन आर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर, उन्होंने बच्चों के सामने ही टीचर को क्या बोला? टोल्ड द टीचर that he should not spread the poison of social inequality. कि उन टीचर को ये सोशल इनक्वालिटी, जो आप इनक्वालिटी भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे हो, जो ये जो जहर है भेदभाव का फैलाने की जो आप कोशिश कर रहे हो, प्लीज आप मत करो. एंड कम्युनल इनटॉलरेंस इन द मिड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. और ये जो आप अजीब सी एक लेसन दे रहे हो स्टूडेंट्स को, ये आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. दीज किड्स आर इनोसेंट. ये बच्चे इनोसेंट है और इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए. इनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम. ही ब्लंटली, वो बहुत बेशर्मी से डायरेक्टली वो क्या बोलते हैं, ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज. उन्होंने क्या बोला टीचर को? या तो आप बच्चों से सॉरी बोलो और क्विट द स्कूल, या आप स्कूल छोड़ दो, क्योंकि हम ऐसा रॉन्ग मैसेज नहीं पास होने दे सकते अपने स्टूडेंट्स के लिए.
नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, टीचर ने सिर्फ अपनी गलती पे ही पछतावा नहीं किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। बट उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया इस यंग टीचर को भी अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन। यस, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अपना या जो बिलीव था वो उन्होंने एक बहुत अच्छे वे में शो कर दिया टू दिस यंग टीचर and made him understand. Okay, so we are not going to move further with the lesson today. Right now we will be doing some MCQs, and I request you all to answer about it in the comment. Okay, and give your answer in the comment section, because you must be watching it recorded. I want you all to try giving your responses in the comment section at least. It will be good for you. Hmm. So, some questions from the lesson in my childhood. Hmm. स्टार्ट करते हैं, कुछ MCQs करेंगे. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, देयर विल बी अ स्पेशल क्लास ऑन द upcoming Saturday for class 9th. Timing will be shared in tomorrow's class with you. Okay, so don't miss that update and do attend that special class, because in that session we will be doing polling of some of the literature lessons which I have taught on YouTube also to you. Okay, there will be definitely questions from my childhood, and I will be also giving you some questions from other lessons as well. Okay, it will be informed. Okay, in which standard Abdul was when the new teacher come to his class? जब न्यू टीचर उनकी क्लास में आए थे तब अब्दुल कलाम कौन सी क्लास में थे? इट वॉज शेयर्ड इन द लेसन जस्ट फ्यू मिनट्स बैक. सो लेट्स सी कौन से स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे पाएंगे. डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट एज अ फाइनल रिस्पॉन्स, बिकॉज आई विश टू सी कौन से स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया. यू कैन कीप राइटिंग लाइक क्वेश्चन 1 आंसर A B C or D, like this. Keep writing, and then we will check the I will definitely check your answers in comments. Mm-mm-mm. Okay, it's standard. Fourth standard में थे. I'm really sorry for making this error. Fourth standard, fifth standard, seventh standard या sixth standard? What do you say? Take your time. I'm giving you 5 seconds, and I hope in those 5 seconds you'll put your comment in the comment section. Okay, fourth standard, fifth standard, seventh standard, or sixth standard? 5, 4, 3, 2, 1. Please answer. Absolutely correct. The correct answer is A, B, C, or D. Correct answer is B. He was in fifth standard that time when that teacher had tried to pass the poison in those innocent children's mind, which was unsuccessful action, by the way, from the teacher's side. Great. Moving to the next question. Ready, everyone? Okay. Next question.
Hmm. Abdul's father believed in. Let's see how well you have understood about Abdul's father. Abdul's father believed in what? Option A, freedom of thoughts. Before you write any answer, please listen to all the options, okay? It might be confusing or easy question for you. Freedom of thoughts. Option B, communal difference. Option C, caste system. And option D, supernatural power. Supernatural power. Ready, everyone? ठीक है? So 5, 4, 3, 2, 1. I think so that you all have written your answers in the comment section. So out of these four options, Abdul's father believed in freedom of thoughts. उनको ये लगता था कि we all have the right to think in our own way. So freedom of thoughts was the was Abdul's father belief actually. Good job everybody. Still well done. This takes so much time. Okay. Ready for the next one? Okay. So moving to the next question. Yes. Nice. Okay. So let's move to the next question and let's see how many of you will be able to answer. Interesting one. We discussed it just now. We practiced. Who wanted the teacher? Who wanted the teacher not to spread communal? कौन चाहता था टीचर को कम्युनल इंटॉलरेंस स्प्रेड ना हो? Intolerance. Ready? Option A, Lakshman Shastri. ओके. ऑप्शन बी है आपका रामानंदा शास्त्री. रामनंदा शास्त्री. प्लीज रिमेंबर दीज स्पेलिंग्स. एग्जाम में यू कैन गेट डिडक्शन इन फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स एज वेल. थर्ड इज रमेश शास्त्री. And the fourth one is the principal of the school. Okay, so if you remember the story, there was a case when uh, one new teacher had come in the fifth standard and they had divided, they have actually separated one of
APJ Abdul Kalam's friend with him. Yes, so he sent APJ Abdul Kalam to the last seat, and his friend kept sitting in the first row. And they both were feeling awkward about it. When they shared with their parents, they got angry, right? And who was the one who told the teacher that you should not spread this communal intolerance, or you are not supposed to behave in this way with the students? Yes, so you need to tell the name: Lakshman Shastri, Ramananda Shastri, Ramesh Shastri, or the principal of the school. You have 10 seconds to think. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. I hope you all have answered correctly. And the correct answer is actually A, Lakshman Shastri. So, students, one more information for all of you. Please try your best to not even miss part 2 of this lesson, because that will also contain important information about the topic, about the lesson. We will end the lesson in part 2. But till then, let me once again give you a quick recap to the poem. Yes, let me give you a quick recap to the poem. If you are new to my class, or if you are attending this class for the first time, then I would better suggest you to visit Unacademy. Search my name with Minakshi Dhal. You'll easily find my name, and you can attend my special and plus classes. If you don't have the plus subscription, then you can use the referral code MD Live 10 in continuation, MD Live 10. If you put this as your referral code, you will get easily 10% discount on your subscription. MD Live 10. Okay, so let's continue with the story. Okay, I'm giving you a quick view to the story. First, we got to know that APJ Abdul Kalam belongs from a Tamil family which is in Rameshwaram. Then he continued talking about his father, Jainulabdin. Jainulabdin was a very kind-hearted person. वो इतने rich नहीं थे या educated नहीं थे, but then also he had the way. He knew, that somebody who needs help, he should be there for that person. He was always ready to help people who are in need. Okay, so this was about his father. Then he also talked about his mother, that he had, his father had a very superb helpmate in his mother's form, Ashiyama, who always helped. यस, सो जो हमेशा रेडी रहती थी लोगों को हेल्प करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए. शी यूज टू फीड सो मेनी पीपल. वो एक दिन में बहुत ज़्यादा लोगों को, आउटसाइडर्स को एक्चुअली फूड प्रोवाइड करवाती थी. लाइक घर के जितने उनके टोटल मेंबर्स थे उनसे ज़्यादा वो आउटसाइडर्स को खाना खिला देती थी ईजिली. So she was this much kind. Then he talks that how he's, how he is not similar to, mm, how he's a little different than his parents' appearance. His parents were tall and handsome and appealing personality. They had appealing personality. But if we talk about APJ Abdul Kalam, then he was a short boy, and then his look were also very common and ordinary. Yes? So then we continue with the story. Hmm. Then he shared about his house, that where he lives. He lives in one of his an ancestral house, जो कहाँ पे है, मॉस्की स्ट्रीट में था उनकी, रामेश्वरम में. It was a pakka house. Then he talks about his father, that his father was an austere. वो बहुत ज़्यादा strict beliefs रखते थे, like some rules and regulations he had in his life. He was not so much of
हैविंग कंफर्ट और लग्जरीज, बट हाँ जो भी बेसिक नेसेसिटीज थी वो ज़रूर फुलफिल करते थे, एंड ही यूज टू सपोर्ट एवरीबडी. यस. ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वर्ल्ड वॉर. 1913 में जब वर्ल्ड वॉर हुआ, it broke when it broke out, he was only 8 years old. और उस टाइम पे उन्होंने उस टाइम पे सडनली टमरेंट की सीड्स जो थी वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी. So he started collecting and even started providing it to the provision shop. So he used to always do something to be better. Yes. uh, and then what he did. Yes. So when the world war started, in the beginning time, their place was isolated, so it was only the stories which he used to get from his brother-in-law, Jalalu sorry Jalaluddin. Jalaluddin used to share the stories of world war with him, and for him these were only the stories, and then he used to search them in the newspapers headlines of Dinamani. Dinamani was the daily newspaper of Tamil. Okay. Students, if you get any kind of doubt, please drop that in the comment section so that I get your doubt and I definitely clear it out. Okay. In the next session we are going to complete the story, and we will definitely do some more MCQs in that session. Okay. So right now I'm just giving a quick recap of the story. Yes. So where रामेश्वरम was isolated from world war, means world war का कोई भी इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ था रामेश्वरम में, वो बिल्कुल अलग चल रहा था आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट धीरे धीरे जैसे इमरजेंसी आती जा रही थी, अलाइड फोर्सेस के साथ ज्वाइन करना पड़ा इंडियन फोर्स को, तो वहां पे सिचुएशन बदल गई थी. रामेश्वरम में एक छोटा सा चेंज आता है, वो क्या था, दैट वॉज कि वहाँ के जो ट्रेन्स थी वो रामेश्वरम स्टेशन पे रुकना बंद हो गई. वहां पे अब वो नहीं रुकेंगी. तो जो न्यूज़पेपर्स थे वो पहुंचाने मुश्किल हो गए थे. देर वॉज ओनली वे कि बंडल को कलेक्ट किया जाए और वहीं से फेंक दिया जाए, चलती ट्रेन से ही फेंक सकते थे. रामेश्वरम रोड पे, जो रामेश्वरम और धनु धनुषकोडी के बीच में पड़ता था. ठीक है. तो इस सारे सिनारियों में जो शमसुद्दीन थे वो ये सब काम करते थे न्यूज़पेपर का. सो उन्हें कोई चाहिए था जो उनकी हेल्प कर सके न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने में और वहाँ से कलेक्ट करने में उन बंडल्स को. सो डेफिनेटली एपीजे अब्दुल कलाम वहाँ पे ही वॉज सपोर्टिव ओवर देयर, और उन्होंने वो स्लॉट फुलफिल किया. और शमसुद्दीन की वजह से, उनकी हेल्प की वजह से ही वॉज एबल टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, proper wages, right, for which he was very proud even after 50 years. 50 years के बाद भी वो, उन्हें अभी तक वो याद था मोमेंट जब उन्होंने अपनी फर्स्ट अर्निंग करी थी, कैसे उनकी लाइफ में एक गुड स्टार्ट हुआ था आफ्टर सेलिंग दैट न्यूज़पेपर, जो वो पढ़ते भी थे और बेचते भी थे. सो सारे एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद क्वालिटीज, डिफरेंट क्वालिटीज, और उनको अपने पेरेंट्स से बहुत ही अच्छी क्वालिटीज मिली, कैरेक्टर्स मिले, लाइक ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, गुडनेस, and having that deep kindness, like his mother used to give food to everybody, right. और सेम उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ भी हुआ, उनको भी वही सारे बेनिफिट्स मिले. देन ही शेयर्स अ स्मॉल सिनेरियो अबाउट हिज फ्रेंड्स. ये जो सिनेरियो है ये कंप्लीट नहीं होता है यहाँ पे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशन इन डिटेल. ठीक है. देर इज वन इंसिडेंट विच इज गोइंग टू गिव अ लेसन टू एवरीबडी अराउंड. सो वो हम डेफिनेटली पढ़ेंगे इन पार्ट 2. ओके. सो उनके जो 3 फ्रेंड्स थे, रामनदा शास्त्री, अरविंदम एंड देन शिव प्रकाशन, वो जो तीनों फ्रेंड्स थे वो तीनों हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं ऐसी फैमिलीज, बहुत ऑर्थोडॉक्स होती हैं अपने रूल्स और प्रेयर्स और रेगुलेशंस के रिगार्डिंग. सो बट दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स. बच्चे थे वो सारे, तो उनको इन सब से फर्क नहीं पड़ता था, उनके लिए वो सारे सेम थे देखने में भी, और with the nature also, everybody was similar for them. So there we read one scenario कि even जो रामनंदा थे वो एक रामेश्वरम के जो सबसे बड़े प्रीस्ट थे वो उनके बेटे थे. तो वो इवन फ्यूचर में वो अपने फादर को रिप्लेस करते हैं. ही बिकेम द प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम.
देन इफ वी टॉक अबाउट अरविंदन, अरविंदन एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाते हैं उन सारे लोगों को जो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। एंड शिव प्रकाश ने केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था साउदर्न रेलवेज का। सो फ्यूचर उनका ऑलरेडी सेट था तीनों का। बट अभी ये जो सिचुएशन थी यहाँ पे तीन फ्रेंड्स की, वो क्रिएट होती है जब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे। ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट इन दैट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। अगर नहीं पता देन प्लीज रीड दिस वंस अगेन, यू विल इजिली अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द एक्टिविटी हियर जो वहाँ पे होती थी रामेश्वरम में। किसी भी शादी के लिए जब जाते थे वो, तो एक एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त वो भगवान की, लॉर्ड की आइडल्स को लेके जाते थे अपने साथ फॉर द सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। कल्याणम शादी को कहते थे, मैरिज को कहते थे। यस, सो यहाँ पे रामायण और प्रॉफिट की स्टोरीज बहुत ज़्यादा सुनाई गई थी अब्दुल कलाम को भी, उनकी मदर और ग्रैंड मदर ने। जब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, एक न्यू टीचर आए उनके स्कूल में और उन्होंने कोशिश करा दैट हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर सके वो, और जिसका उन्हें एक बहुत बड़ा लेसन मिला फ्रॉम फ्रॉम रामनंदा's फादर ओनली, फ्रॉम रामनंदा's फादर ओनली ही गॉट अ वेरी ह्यूज लेसन। यस, सो ये थी स्टोरी फॉर नाउ। स्कूल के बाद वो कैसे कैसे राम, सॉरी, लक्ष्मण लक्ष्मण शास्त्री ने एक लेसन दिया उन टीचर को आफ्टर दैट, क्योंकि उन बच्चों ने अपने घर पे जब जाके बताया तो दे वर नॉट हैप्पी कि टीचर क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, डिस्क्रिमिनेशन सिखा रहे हैं, हमें ये नहीं सिखाना है अपने बच्चों को। सो दे वर वेरी रूड टू द टीचर। ये सब हुआ था स्टोरी में। इसके आगे क्या हुआ, क्या लेसन था ये डिस्क्रिमिनेशन से रिगार्डिंग, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो पार्ट 2 होगी। ओके, ऑफ सेम माई चाइल्डहुड लेसन पार्ट 2। ठीक है, एंड इन दैट लेसन आई विल कंप्लीट द लेसन, वी विल डू सम मोर MCQs and we will enjoy and learn. Okay, till then, bye bye everybody, take care of yourself. um, you can attend many of such detailed lessons if you join me on Plus. And to join on Plus, you need to use this referral code which gives you directly 10% off. You get 10% direct off on your subscription and you take the subscription. This is the best time that everybody is getting so many benefits. There is Creative Corner. You get the Creative Corner benefit only if you are a Plus learner, and this benefit is available till 24th of November. उसके बाद ये क्रिएटिव कॉर्नर फ्री नहीं होगा. क्रिएटिव कॉर्नर हैज सो मेनी ब्रिलियंट आइडियाज to improve your maths and other skills, which makes you creative. So there are Vedic maths, there is poem reciting, many activities are available in free if you are a Plus learner. So take the Plus subscription now, get the free benefits of Creative Corner, otherwise you'll be too late and you'll be unhappy for that. So the referral code that you need to use is MDLive10, which is given here also. All the best learners, meet you all in the next session, that is part 2, which will be shared shortly with you all. Till then, take care, have fun, keep learning. Thank you so much.